दोस्तों नमस्कार। सुबह से काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हो रहे हैं रिगार्डिंग पोल्ट्री। आई विल ट्राई टू मिक्स बिटवीन हिंदी इंग्लिश because our some of the friends, if they are not very comfortable in either of them, should take the benefit of whatever options they have. See, in next 10 minutes or so, what I'm going to discuss is, because in last couple of years we are discussing that poultry sector is not making profit. But when you look into the market about the consumer's trend and also the new players which are entering into the market, their price point and at which you are selling is very different. जो डेली हमारे पास व्हाट्सएप आता है उसमें जो प्राइस दिए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ ए केजी, 90 रुपीज़ ए केजी, समटाइम्स 85 रुपीज़ केजी, समटाइम्स 110, 112, whatever. These are the rates which farmers are getting. But at the same time, on the same day, if I go to the market, either in physical or online, the rates are almost 3 times. And the fact is, if some rates are existing in market, if people are putting a price on internet or on app or in retail market or in supermarket, which is 2 times or 3 times the price which you are selling as a farmer, it means there is a market. अगर रेट में 350-400 रुपए में अगर चिकन नहीं बिकता तो कोई रेट लिखता भी नहीं, इसका मतलब माल तो बिक रहा है. Now issue will come upon how much quantity. Somebody will say 1%, somebody will say 2%, somebody will say 5%. It all depends upon how you look at it. Today what I am going to do is 2 small case studies for you. Who is responsible for confusing the customers? Customer is willing to pay. Who is responsible for creating confusion in customer's mind? Number 1. How you can change the customer from a live to a value-added segment at a lower cost. That is also important. And both are live case studies which exist in India. I'm not talking about any outside India. And both are my personal experience, because one of is my client and another is my recent traveling into the interiors to find out what is happening into the market. So what I'm going to share with you is what is actually happening what consumer is thinking. When we talk about poultry sector, there are 2 issues. You can obviously have a turnover. You can place 1,000 birds, 10,000 birds, 1 lakh birds. It's your choice. Nobody can stop you, because Constitution of India gives you permission and authority and freedom to decide what you want to do with business. Government is not going to stop you. But point is, are you making profit in the game? That is the whole thing. If you are using physical effort, I always tell to my friends in business in various forums, if you are applying a lot of physical effort, you can increase the turnover. But if you have to improve the profit, you have to apply brain. So you have to see where your efforts are going on. You are working 24 hours, increasing turnover, very good, you are happy with that, very good, no regret. It is your life, you have to decide. But if you are looking at profit options, market is willing to pay, provided you are willing to service the market. Consumer will not change for you. You have to change as per customer need. Rules of the games are very clear. Now what is that? We have to look at it. When I go as a consumer to the market, what I get? What is my interface as a consumer with the poultry world? These are the similar 2 photographs which you will observe. Some are much worse, some can be much better. So somewhat, this is the way Indian poultry industry looks like to a consumer.
In a society where you are saying that people are becoming educated, you are saying people are becoming conscious about hygiene, we all say that we all are educated, literate, hygiene conscious people, and if you are offering birds like this, and if they do not buy or willing to pay premium for it, whose fault? You have to think. कंज्यूमर को पता है उसको क्या करना है, उसके पास चॉइस है खरीदने का, उसके पास ये भी चॉइस है कि नहीं खरीदूंगा, ये भी कंज्यूमर की चॉइस है, कोई कंपल्शन नहीं है. So when consumer has a both option to buy and not to buy, if you have to convince customer that he should buy your product, you have to make efforts. Customer is clear. किसी कस्टमर ने आज तक कंप्लेंट नहीं करी भारत सरकार को कि हमको चिकन नहीं मिल रहा है. किसी ने कंप्लेंट करी? टमाटर को लेके कंप्लेंट हुई है, लेकिन आज तक किसी कस्टमर ने भारत सरकार को कंप्लेंट नहीं करी कि चिकन के रेट बहुत ज्यादा हो गए या मिल नहीं रहा. इसका मतलब we are not able to make any difference in the life of a customer. So that we have to be very clear. Let me go to the next slide. Next, please. So this is very important for us to look at it. हम मुर्गी की बात कर रहे हैं, we are talking about poultry. अब किसको क्या दिख रहा है ये उसका परसेप्शन है. As a farmer, I see whole bird. When I sit on the dining table or when I place an order in the shop or when I go to the market and buy my requirement, I see things differently. This is what the perception difference is. आपको लगता है पूरी मुर्गी बेचनी है, कस्टमर कहता है यार मुझे तो लेग पीस चाहिए, कोई बोलेगा मुझे ब्रेस्ट पीस चाहिए. अब आप क्या बेच रहे हो और मैं क्या खरीद रहा हूं, देयर इज अ डिस्कनेक्ट. दैट इज वन थिंग वी हैव टू seriously look at it. Now you are expecting consumer should buy the whole bird. I'm talking of a changing society. Look around you. कितने घरों में, मैं आपके साथ एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, कितने घरों के अंदर चिकन को पीस करने के किचन में टूल्स अवेलेबल हैं? जब मेरे को घर में सब्जी काटने के लिए चक्कू अवेलेबल है तो मैं सब्जी अपने हिसाब से काट सकता हूं, उसकी मैं रेसिपीज बना सकता हूं, उससे मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं. फ्रूट्स काटने के ऑप्शंस मेरे पास हैं. आई कैन डिसाइड हाउ टू ईट फ्रूट, व्हेन, इन व्हाट शेप एंड वेयर. व्हाट अबाउट पोल्ट्री और मीट? मेरे घर में तो टूल ही नहीं है यार काटने का. तो व्हाट आई डू? मैं अगर उससे पकोड़े बनाना भी चाहता हूं बोनलेस के, मेरे पास साधन ही नहीं है. सो आई हैव टू डिपेंड ऑन द शॉपकीपर. एंड व्हेन आई गो टू द शॉपकीपर एंड आई सी द हाइजीन अराउंड, ऐसे छोड़ो यार नहीं खाएंगे, बना बनाया ले लेते हैं. देन लेट मी गो टू मैकडोनल्ड्स और लेट मी बाई ए रेडीमेड, लेट मी गेट इट सो कॉल्ड, मे बी 300 रुपये किलो है, 400 रुपये, 600 रुपये, कोई बात नहीं यार, फ्राई करेंगे खा लेंगे, ये सब तामझाम से छुट्टी. I'm not going into the wet market. Consumer behavior is changing. आपको पसंद हो या ना हो. We have to be very clear. So that is what we have to look at it, कि आप जब बिजनेस में हैं, पोल्ट्री के बिजनेस में हैं, तो आप किसकी नजर से बिजनेस को देख रहे हैं? आप अपनी नजर से तो आपके लिए वेट मार्केट है. कंज्यूमर की नजर से वेट मार्केट इज अ डर्टी प्लेस. Now tell me where I should go and where I should pay premium. किसका माल खरीदूंगा मैं? जहां जाऊंगा वही तो खरीदूंगा. मैं वेट मार्केट तो जाना ही नहीं चाहता. एनवायरमेंट इज सो फिल्दी एंड लाउजी. तो जब मैं वहां जा ही नहीं रहा तो अल्टीमेटली मेरी दुकान में मोहल्ले के किनारे आप आके छोटी छोटी दुकानें लगाएंगे. स्वच्छ भारत अभियान में वो सब खत्म हो रही है. कोई नहीं चाहता अपने मोहल्ले में. आपके मोहल्ले में आप चाहते हैं? आई हैव सीन इन माई कॉलोनी, जहां पे 6 दुकानें थी घट के 1 रह गई है.
पीपल डोंट वांट, गंदगी होती है, साफ करिए। इवन RWA सेज कि हमें नहीं चाहिए, बाहर निकलो। सोसाइटी इज चेंजिंग, वी डोंट वांट दिस डर्टी फिल्थी थिंग्स अराउंड। आप उसको प्रोटीन बोलो, न्यूट्रिशन बोलो, कुछ भी बोलो, गंदगी नहीं चाहिए। जब मेरे को एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जब मेरे को कंफर्ट नहीं है, तो बाजार में प्रीमियम की बात करेगा कौन, प्रॉफिट की बात करेगा कौन? सोचिए इसके बारे में। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन पोल्ट्री एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी ग्रोथ होगी और मजबूरी है ग्रो होना। अब ग्रो होगी, उसका फायदा आपको मिलेगा या नहीं, यह गारंटी नहीं है। दो चीजें बहुत अलग है। पोल्ट्री सेक्टर विल ग्रो, बट विल यू मेक प्रॉफिट और नॉट, इट इज ए वेरी डिफरेंट थिंग। वाई पोल्ट्री सेक्टर विल ग्रो, इसको समझना जरूरी है। जितने बाकी मीट अवेलेबल हैं, पोल्ट्री उसमें सबसे सस्ता है। इवन बहुत सारी वेजिटेबल्स भी अगर आप देखें, दालें भी देखें, तो सस्ता पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं सबसे सस्ती सब्जी है अंडा करी। इससे सस्ती सब्जी, इससे न्यूट्रिशियस सब्जी दूसरी नहीं है मार्केट में। इसी तरह से नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में पोल्ट्री, और इफ आई से द मीट पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू, पोल्ट्री इज द चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। सो लो कंज्यूमर प्राइस, और सबसे अच्छी बात क्या है, ईज ऑफ प्रिपरेशन। छोटा बर्ड है, वीक बोन्स हैं, छोटी बोन्स हैं, आराम से आप काट पीट लेते हैं। अगर मटन लाएंगे तो उसको हैंडल करना ही घर में सिरदर्दी है। तो जैसा पीस आता है वैसा ही रहना पड़ता है, उसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते। तो सेकेंड ऑप्शन इज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि इट इज ईजी टू मेक, इसीलिए घर में आसानी से चिकन बना लिया जाता है। थर्ड, ये पूरी तरह से सेक्युलर मीट है। मुर्गी में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, बिजनेस सही है, ग्रोथ तो होगा ही। सो दैट इज वन थिंग विच वी हैव टू बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। या नाउ इशू इज कि कंज्यूमर क्या सोच रहा है। अभी तक तो हमने सप्लाई साइड, उसके ऑप्शंस की बात करी। अब थोड़ा जो कंज्यूमर, जो अल्टीमेटली हमें और आपको पैसे देगा, हम उसकी थोड़ी बात करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि मीट इंडस्ट्री को लेके सबसे बड़ा जो कंसर्न लोगों का होता है वो है क्वालिटी। इसीलिए हर मीट शॉप पे आदमी नहीं जाता है, लोगों के प्रिफर्ड होते हैं। आप अपने आसपास मोहल्ले में पूछ लीजिए कि आप मीट कहाँ से लाते हैं, तो कहेगा मेरा वो बुचर है या मेरी वो शॉप है, मैं वहीं से ही लाता हूँ, बाकी नहीं लाता, बिकॉज आई एम नॉट श्योर ऑफ क्वालिटी। सो पीपल वेरी क्लियरली एसोसिएट मीट विद हाइजीन। आप अपने आसपास पूछिएगा, अपने आसपास समाज में ध्यान से देखिएगा। आप अपनी फैमिली में अपनी वाइफ से अगर आप शॉप लेने जाते हैं, मीट लेने जाते हैं, तो आप कहीं से रैंडमली नहीं उठाते हैं। आप प्रेफर करते हैं कि जहां से आपको भरोसा हो आप वहीं जाएं, आप हर जगह नहीं जाते। सेकेंड इशू विच इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट नाउ एज वी आर टॉकिंग ऑफ सुपर मार्केट्स एंड रिटेल मार्केट्स, जहां पे ऑर्गेनाइज मार्केट्स की बात आ रही है, लेबलिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लोग चिकन उठाते हैं, उसमें शेल्फ लाइफ देखते हैं, वेट देखते हैं, किसका प्रोडक्ट है, क्या है, पीपल आर बिकमिंग अवेयर। तो अगर वो फ्रेश नहीं खरीद रहा है, अगर वो ब्रांडेड भी खरीद रहा है कस्टमर, तो वो लेबल पे जानना चाहता है कि ये कितना पुराना है, चाहे वो फ्रोजन ही हो। लेकिन एक कंज्यूमर परसेप्शन है कि जहां तक हो सके फ्रेश। वो इंस्ट्रक्शन देखता जरूर है, जानने की कोशिश करता है कि वो क्या खरीद रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लुक एट इट, कंज्यूमर्स लेवल। लेकिन अगर कस्टमर कॉन्फिडेंस शेक होता है किसी ब्रांड को लेके, चाहे वो बर्ड फ्लू हो, बर्ड फ्लू को लेके बात आती है, किसी और मुद्दे को लेके बात आती है, आप देखेंगे जैसे ही पोल्ट्री में क्राइसिस आता है या मीट इंडस्ट्री में क्राइसिस आता है, कंज्यूमर बिहेवियर उस समय सबसे ज्यादा बदलता है। इमीडिएटली पीपल लुक फॉर विच इज ए बेटर अल्टरनेट, दे डोंट कंटिन्यू। और अक्सर इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर्स हमने ये देखा है, जब भी इंडस्ट्री में क्राइसिस आता है उसके बाद बहुत तेजी से रिफॉर्म आता है। और ये रूल सिर्फ मार्केट के लिए लागू नहीं होता है, पॉलिसी मेकिंग में भी लागू होता है।
कि जिस सेक्टर में क्राइसिस आता है तुरंत सरकार वहां पे रिफॉर्म लेके आती है। तो कभी कभी मैं अक्सर ये कहता हूं कि जिस सेक्टर में आपको रिफॉर्म लाना है पहले वहां पे क्राइसिस लाओ। सरकार भी तभी सुनेगी, इंडस्ट्री भी तभी सुनेगी। व्हेन एवरीथिंग इज नॉर्मल, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन चेंज। किसी को मतलब नहीं है क्या बदलना है, लेकिन कंज्यूमर बदलता है क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है, उसकी सेहत का सवाल है। तो वो तुरंत देखता है कि हम क्या करें। इसीलिए अगर आप देखेंगे बर्ड फ्लू के बाद, कोविड के बाद, आप किसी भी प्रोसेस्ड मीट इंडस्ट्री, जितने भी सप्लायर्स हैं जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में हैं, आप उनसे बात करिए, एवरीबडी इज सेइंग 20 to 40% ग्रोथ। ये कौन लोग हैं, कहां से आए? ये वही लोग थे जो पहले कुछ और खा रहे थे, कोई और अल्टरनेट यूज कर रहे थे। दे हैव मूव्ड इनटू मोर हाइजीनिक ऑप्शन, कन्वीनियंट ऑप्शन। तो इसका मतलब कस्टमर बहुत तेजी से बदल रहा है। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं। और कस्टमर सिर्फ यही नहीं देखता कि आपने मेरे सामने क्या रख दिया है, और मैं आपको उसके कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ पैरामीटर बताऊंगा। और अगर ध्यान से आप खुद अपने बारे में सोचेंगे तो आप भी उन पे गौर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बाहर का आदमी है, आप भी कंज्यूमर हैं, आप भी उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं जब आप खरीदने जाते हैं। उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह पे मैंने जब लोगों से बात करी कि यार आप लोग रिटेलिंग कर रहे हैं, हमने तो रिटेलिंग करी थी लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं आता, कस्टमर स्टिल वांट टू गो बैक टू द सेम थिंग। क्योंकि आप उसको वो कंफर्ट नहीं दे रहे हैं जो वो देखने आया था आपके पास। आप आधी अधूरी बात कर रहे हो, आप उसको पूरी बात नहीं बता रहे हो, या उसको आप कंफर्ट नहीं दे पा रहे हो। तो वो कहता है कि जब मेरे को आप कंफर्ट दे ही नहीं रहे हो, रिटेलिंग के नाम पे जो चीज़ बाजार में 150 या 125 रुपए की मिल रही है, मैं आपको 200 रुपए किस बात के दूं? जब माल ही वही है तो किस बात के एक्स्ट्रा पैसे? और ये मैं आपको विद एग्जाम्पल बताऊंगा। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कंप्लीट कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझना जरूरी है व्हेन इट कम्स टू परचेज बिहेवियर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जब भी क्राइसिस की हम बात आती है, आपने अक्सर देखा होगा आज की तारीख में समाज में परसेप्शन क्या है, और इसके कारण ही बहुत सारे PIL हैं। पोल्ट्री फार्म किसी भी एक्टिविस्ट ने नहीं देखा होगा, लेकिन जिस तरह से वो पोल्ट्री की रिटेलिंग देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, इससे पोल्ट्री का नाम खराब हो रहा है। और 90% पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कोर्ट्स में चल रहे हैं बिकॉज ऑफ हाउ वी हैंडल द पोल्ट्री, नॉट हाउ वी ग्रो द पोल्ट्री। आप इस बात को समझिए, पोल्ट्री ग्रोइंग को लेके कोई क्राइसिस नहीं है, पोल्ट्री हैंडलिंग को लेके क्राइसिस है। क्योंकि कस्टमर को वही दिखता है, साइकिल पे टंगी हुई मुर्गियां, लटकी हुई दोनों तरफ, ऑल दीज थिंग्स। कस्टमर को प्रॉब्लम है इससे, हम माने या ना माने। एंड दैट इज वाई जैसे कि अगर इंडस्ट्री नहीं सुधर रही तो वी ब्रिंग द लॉ, सरकार कानून नहीं बनाएगी तो हम कोर्ट की तरफ से आएंगे। बट कस्टमर इज क्लियर, दैट इज व्हाट वी हैव टू लुक एट इट। अनदर इंपॉर्टेंट इशू इज नीड फॉर रिलायबल इंफॉर्मेशन। क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ती है, प्रोडक्ट के साथ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिर्फ प्रोडक्ट खाना, ये मुर्गी है, इज नॉट एनफ। अगर आप देखें क्लेम्स जो कर रही हैं आपकी कंपनियां, वो क्या कर रही हैं? आप इंटरनेट पे जाइए, लीशियस की वेबसाइट पे जाइए, बाकियों पे जाइए, वो क्या क्लेम कर रहे हैं? फ्री ऑफ एंटीबायोटिक। अब आप कहोगे जी वो तो है ही नहीं, आप बोल रहे हो, लेकिन वो क्या क्लेम कर रहा है? एंटीबायोटिक फ्री। कस्टमर को पसंद आ रहा है, फ्रेश उसको पसंद आ रहा है, हार्वेस्टेड और स्लॉटेड इमीडिएटली इन 2 hours 3 hours विल गिव यू डिलीवरी, होम डिलीवरी। कस्टमर को ये पसंद आ रहा है, आपको पसंद आए या ना आए, तभी माल बिक रहा है, तभी वो कंपनियां चल रही हैं, नहीं तो बंद हो गई होती। अगर कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन उसके बिहेवियर को बदलती है और सेल प्रमोशन करती है, तो हमारे पास व्हेन वी गो टू द मार्केट एज ए फार्मर, हम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं विद पोल्ट्री? थिंक इट ओवर। हम कुछ दे रहे हैं तो मेरे लिए और मेरे पड़ोसी का फार्म और उसके नेक्स्ट फार्म, ये 10 के 10 फार्म एक से हैं, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ प्रीमियम नाउ व्हेन एवरीबॉडी इज सेम? तो आप कितनी मेहनत कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप और आपके पड़ोसी में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि मेरे को पता है कि आपका पड़ोसी गंदा काम कर रहा है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो? एंड दैट परसेप्शन इज किलिंग द प्रॉफिटेबिलिटी इन द सेक्टर, क्योंकि वी आर नॉट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद द प्रोडक्ट। जब लिटरेसी लेवल समाज में बढ़ता है तो क्यूरियोसिटी लेवल भी बढ़ता है, लोग जानना चाहते हैं। और यही कारण है
कि जो इतने सारे, मैं आपको सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस बता देता हूं, इतने सारे जो यूट्यूब पे व्यूअरशिप आती है, वो क्यों आती है? पीपल वांट टू नो व्हाट नेक्स्ट, नहीं तो इतनी व्यूअरशिप नहीं आएगी। तो पीपल आर इंफॉर्मेशन हंग्री एंड वी आर नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन। वी आर डिप्राइविंग पीपल ऑफ समथिंग विद द हेल्प विच दे कैन मेक डिसीजन। इसके बारे में आपको सोचना होगा। अल्टीमेटली जब चीज समझ में नहीं आती है, देन पीपल ट्रस्ट देयर ओन आईज। वन ऑफ द रीजन गोइंग बैक टू अगेन एंड अगेन वेट इज कि जब पता ही नहीं कि ये जो शॉप में माल रखा हुआ है इसकी क्वालिटी क्या है, कोई बता नहीं रहा है, तो फिर जो दिख रहा है आंख से वही ठीक है। तो अगर मेरे सामने मुर्गी स्लॉटर हुई है, चाहे वो बीमार है, उसमें क्या बीमारी है मुझे मतलब नहीं है, मेरा सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया है कि मेरे सामने मुर्गी का स्लॉटरिंग हुआ है। दैट्स ऑल, दैट इज द ओनली क्वालिटी सर्टिफिकेट आई हैव। इज दिस द करेक्ट थिंग? इज दिस रियल क्वालिटी जस्ट बिकॉज इट इज स्लॉटर्ड? कस्टमर को नहीं पता। क्या आपने सिखाया उसको कि हाउ टू डिफरेंशिएट क्वालिटी? हमने नहीं सिखाया। तो जब हम कंज्यूमर को एजुकेट नहीं करेंगे तो आपकी जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, आप अच्छी फीड खिला रहे हो, आप अच्छा हाउसिंग दे रहे हो, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, मुझे क्या पता, मेरे तो सब बराबर है। तो आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट के मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं? आपने बताया नहीं किस बात के लिए चाहिए। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट पीपल मेक अटेम्प्ट, गो फॉरवर्ड, फिर कहते हैं यार प्रीमियम नहीं मिला, वापस आ जाते हैं, फिर वही पुराने सिस्टम पे आ जाते हैं। तो ये जो अप एंड डाउन चलता है, दैट इज समवेयर द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस। नेक्स्ट प्लीज। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टुडे? जब हम बात कर रहे हैं, देखिए मार्केट को आपको यूनिफॉर्म नहीं लेना होगा। एक है मार्केट, रूरल मार्केट, जिसको आप ये कह सकते हो कि शायद लोगों के पास टाइम है, लोगों को बनाना आता है, पॉवर्टी है, पैसे कम है, वो एक अलग सेगमेंट है। एक अर्बन मार्केट है जहां लोगों के पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। दैट्स अनदर चैलेंज, वो एक अलग सेगमेंट है, आप उसको कैसे सर्विस कर रहे हैं। एक तीसरा सेगमेंट इमर्ज कर रहा है कि लोगों को अच्छा खाना है लेकिन बनाना नहीं आता। हाउ मेनी पीपल, अगर आप अपने आसपास समाज में देखें, आप अपने परिवार में ही देखें कि अगर आपकी माताजी बहुत अच्छा चिकन बनाती थी, आपके घर में कितने लोगों को चिकन बनाना आता है? और जब मुझे बनाना नहीं आता है तो मैं तो मार्केट में ही जाऊंगा ना, फिर तो मैं दुकान से ही मंगाऊंगा। तो जो हाउस होल्ड कंजम्पशन थी वो घटेगी, शॉप कंजम्पशन बढ़ेगी। और शॉप कंजम्पशंस आर रेसिपी स्पेसिफिक, कि इसका टेस्ट अच्छा है, इसका खराब है, यहां बिरयानी अच्छी है, वहां पे करी अच्छी है। दीज आर चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ सोसाइटी, और इसको समझना होगा। और यही कारण है कि जब बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, जो कंपनियां पहले मार्केट कैप्चर करेंगी वो आराम से किसान के साथ टाई अप कर सकती हैं, क्योंकि दे हैव क्रिएटेड ए सेगमेंट, प्रॉफिट उनके पास है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं डिलीशियस के अपने कौन से फार्म है? जरूरत नहीं है ना, मेरे को जरूरत ही नहीं है फार्म की, उगाने के लिए 50 लाख किसान घूम रहे हैं ना देश में। मेरे को तो मार्केटिंग करनी है, धंधा उसमें है। सेलिंग इज बिजनेस, प्रोडक्शन इज नॉट ए बिजनेस। आई एम इन बिजनेस, मेरे को हार्ड वर्क नहीं करना है, मुझे कमाना है। आप लेबर जॉब करने के लिए बहुत लोग हैं दुनिया में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लेबर जॉब। अगर लीशियस को मैं कहूंगा मैं आपको 150 रुपये किलो चिकन दूंगा, लेकिन आप मेरे हिसाब से ड्रेसिंग करेंगे, पैकिंग करके देंगे, कितने लोग मना करेंगे? जब बाजार में आपको 110 115 मिल रहा हो, अगला 150 दे रहा हो, उसको 450 में बेचना है, ही कैन अफोर्ड। तो मेरे को प्रोडक्शन नहीं करना है, क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं? आई एम इंटरेस्टेड इन अर्निंग, टॉकिंग टू कस्टमर, कि आपको क्या चाहिए मैं वो बनवा के देता हूं। एंड दैट इज व्हाट वन हैज टू थिंक थ्रू। एंड डाइवर्सिफाइड प्लेस ऑफ कंजम्पशन। अभी क्या होता है, चिकन का जो ट्रेडिशनल कंजम्पशन था कि हम घर में किचन में चिकन बनाते थे, कैन आई टेक चिकन प्रोडक्ट टू ऑफिस? थिंक इट ओवर, ट्रेडिशनल आइटम्स नहीं होता था। कुल मिला के लंच टेबल और डिनर टेबल, इसके अलावा चिकन कंजम्पशन नहीं था। आज कितने ऑप्शन है? आर यू देयर इन द सेगमेंट? एंड हाउ मच दे आर चार्जिंग? मीट के अंदर वो दुनिया भर का फिलर है, आटा है, सब कुछ है,
आटे को चिकन के रेट पे बेचते हैं, आप चिकन को चिकन के रेट पे नहीं बेच पा रहे, एंड दिस इज बिजनेस. That is what we have to understand if you want to improve profit. Next slide, please. Now look at this. मैं अभी तमिलनाडु के टूर पे था. I'm not questioning any credibility, but I'm looking from a consumer's perspective. हर दुकान के ऊपर सुगना लिखा हुआ है. इंपॉर्टेंट ब्रांड है, सबको पता है सुगना चिकन है. लेकिन एज ए कंज्यूमर मुझे क्या पता लगेगा कौन सा सही क्वालिटी है? आप मेरी कंडीशन समझिए ना. मैं 6 दिन वहां घूमा तमिलनाडु में बाई रोड. सुगना नाम से वर्चुअली हर शॉप पे बोर्ड लगा हुआ है. अब मुझे ये बताइए कि पहली दुकान, दूसरी दुकान और तीसरी दुकान में अगर रेट फर्क है तो क्यों फर्क है? किस बात के पैसे? सिर्फ डेकोरेशन के? क्योंकि शायद माल तो एक ही जगह से आ रहा है, माल की क्वालिटी तो शायद एक ही है, या डिफरेंट है, मुझे नहीं पता. And there is no consistency in branding. आप मेरी मजबूरी समझिए. मैं अच्छा माल खरीदना चाहता हूं और मुझे किसी ने कहा कि सुगना इज ए वेरी गुड ब्रांड इन तमिलनाडु. वेरी गुड, खरीदेंगे. किस दुकान से, कहां से लूं कि क्वालिटी एश्योरेंस हो? अगर पहली वाली दुकान का माल तीसरी में सेम चीज मिल रही है लेकिन रेट 100 रुपए किलो अलग है, एज ए कंज्यूमर मुझे क्या लगेगा? कि यार 100 रुपए किस बात के? These are common mistakes which is happening in Indian poultry retail businesses. We are creating more confusion instead of convincing arguments for consumers. One has to think about it. Next, please. अब आप कंज्यूमर की थोड़ी और क्लोज असेसमेंट में जाइए. आई एम जस्ट another 2-3 स्लाइड्स, ज़्यादा लंबा प्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने कम स्लाइड्स रखी हैं. एनवायरमेंट ऑफ द स्टोर. मेरे घर के पास, नाली के पास मुर्गी काट रहा है बैठ के. कितने लोग जाते हैं? मैं तो देखा सिर्फ वो जो रिक्शे वाले हैं या वो ई रिक्शा चलाते हैं वही वहां से ड्रेसिंग कराते हैं. कभी किसी कार वाले को तो रुकते मैंने देखा नहीं, किसी और गाड़ी वाले को तो मैंने रुकते देखा नहीं. तो वहां कटवा कौन रहा है? वही जो ठेले वाला है, जो लेबर है, ऑटो में आ रहा है, ई रिक्शा में आ रहा है, वही कटवा रहा है. अब जिसको आप समाज में लोअर या लोअर मिडिल क्लास मानते हो, आप उससे प्रीमियम की उम्मीद करोगे? क्योंकि आपके स्टोर में वो जा ही नहीं रहा है. फिर नीटनेस ऑफ वर्कर. आप वर्कर्स की कंडीशन देख लीजिए. अब मैं फोटो दिखाऊंगा सारे तो आप कहोगे यार आप क्या कर रहे हो, आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. टाइम मैनेजमेंट ऑफ द स्टोर. एक है जिसने ऑर्गेनाइज किया, वहां 1 या 2 बुचर बैठे हैं, मालिक है, उसका एक बेटा है, जो भी है, 6 आदमी खड़े इंतजार कर रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा. पहला ड्रेसिंग कर रहा है, 10 मिनट लगेंगे. दूसरे का आएगा, 10 मिनट लगेंगे. तीसरे का आएगा, 10 मिनट लगेंगे. आधा घंटा मैं चिकन खरीदने रुकूंगा क्या वहां पे? मैं वहां से निकल के कहीं और निकल जाऊंगा. दिस इज अनदर चैलेंज विच वी हैव टू लुक एट इट. तो पर आउटलेट फ्रेश में कितना सेल होता है, ज्यादा क्यों नहीं हो पाता? आप उसका टाइम मैनेजमेंट स्टडी करिए. 150 बेच लेगा वो, 1000 बेच पाएगा? उसका कैपेसिटी नहीं है मैनेज करने की. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन टू लुक एट इट. कम्युनिकेशन के नाम पे कुछ नहीं है. कटिंग मेथड, कहीं पे वो लकड़ी वाला रखा हुआ है, कहीं पे फट्टा रखा हुआ है, कहीं पे किसी ने थोड़ा मॉडर्नाइज किया है तो उसने टेफ्लॉन कटिंग बोर्ड रख लिया है, लेकिन उसके पास जो कपड़ा पड़ा है वो एकदम गंदा काला, उसमें खून लगा हुआ है. उससे ही वो दोबारा साफ कर रहा है. कटिंग करने के बाद दोबारा उसी कटिंग बोर्ड को वो कैसे साफ कर रहा है आप उसको देख लो. जैसे ही वो उस कपड़े को टच करता है और उस पानी को टच कर, आदमी कहता है छोड़ यार बाद में ले लेंगे. दैट इज द रियलिटी. तो टेक ऑफ अगर चिकन का होना है तो आप होने नहीं दे रहे. कंज्यूमर को आप कन्विंस कर ही नहीं पा रहे कि वाई ही शुड बाय, क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा बना दिया है कि इट इज ऑफेंसिव. कंपैरिजन विद अदर स्टोर मैंने आपको दिखा दिया. अच्छा प्रोडक्ट है, स्टोर अच्छा है, लेकिन नाम एक ही है. तो क्या आप वही माल यहां काट रहे हो? वहां पे 100 रुपए मिल रहा है, वो गंदा माल काट रहा है. आपने क्या किया है? सिर्फ स्टोर बदला है, माल तो वही है. अब कहते हो 100 रुपए एक्स्ट्रा. कस्टमर सोचेगा ना किस बात के, नया क्या दे रहे हो? डेकोरेशन के 100 रुपए. देयर इज समथिंग विच वी हैव टू डू इन टू दैट.
अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट, बहुत सारे दुकानदार हैं जो मैरिनेशंस के लिए मसाले रखते हैं, बाकी चीजें रखते हैं चिकन के साथ कि हाउ टू मेक इट, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोशन। देन प्राइसिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, क्लीनिंग प्रोसेस की मैंने बात कर ली, रिलीजियस इश्यूज आते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में। अब फ्रेश चिकन की बात होती है। अब बहुत सारे शॉपकीपर टू मीट द डिमांड क्या करते हैं, पहले ही ड्रेसिंग करके नीचे अपनी ट्रे में रख देते हैं और कुछ मुर्गियां फ्रेश रखते हैं। अब कस्टमर कहता नहीं, वो पता नहीं कब काटा है, क्योंकि वो फ्रिज में भी नहीं है प्रॉपरली, ने वो ट्रे में डाल के रख दिया, या ताजा ही कर दे, तो जो आपने काटा वो खराब, अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा, किसी ना किसी को आप चिपकाओगे। तो दीज आर द इश्यूज टू लुक एट इट, क्वालिटी, पैकेजिंग। एंड द लास्ट पॉइंट वेट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जिससे भी मैंने बात करी इंडस्ट्री में कि यार आप रिटेलिंग में क्यों नहीं जाते, सब रिटेलिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, प्रमोशन कौन करेगा। द फैक्ट इज प्रमोशन इज द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहले प्रोडक्ट तो अच्छा दो, स्केलिंग अप के लिए प्रमोशन चाहिए, पहली दुकान के लिए प्रमोशन थोड़ी चाहिए। पहली दुकान में तो कस्टमर का एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो प्रमोशन करके करोगे क्या। So that we have to keep in mind. Next slide, please. Then think like a consumer. You have to look at. आप हमेशा किसान की तरह सोचते रहोगे, वैल्यू एडिशन नहीं कर पाओगे। I will not go into detail, but non-food safety concerns, freshness, quality, communication, presentation, सब मैटर करता है। जब तक किसान की तरह सोचोगे, कमा नहीं पाओगे। कंज्यूमर की तरह सोचना पड़ेगा तो पता लगेगा कहां क्या गलती हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। और ये मेरी लास्ट 2 स्लाइड्स में आपको बता रहा हूं कर्नाटक का लाइव एग्जाम्पल। लुक एट व्हाट इंडियन स्मॉल स्केल कंपनी इज डूइंग। स्टार्टेड वर्चुअली फ्रॉम जीरो, आज इनका टर्नओवर है 350 करोड़। ग्रोथ रेट इज 16 to 20%। fully computerized communication system, everything is systematic, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। Hygiene, quality of feed, service, everything, and look at what all options are available, and look at the difference। मैं आपको ये जो स्लाइड दिखाना चाह रहा हूं, आप कोई भी एक लाइन ले लीजिए, एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या है, ब्रांचेस प्राइस क्या है, फ्रेंचाइजी क्या है, होटल क्या है, कैटरर क्या है, रिटेल प्राइस क्या है, सेम प्रोडक्ट, और ये ओपन ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन है। रिटेलर कैटरर वाले को भी पता है कि अगर मैं फैक्ट्री आउटलेट पे जाऊंगा तो जो माल मुझे 173 रुपए में मिल रहा है 158 में मिलेगा, लेकिन एफर्ट आपको करना होगा। अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए एज ए कैटरर तो आपको 158 में नहीं मिलेगा, 173 में ही मिलेगा। एंड कंज्यूमर्स आर पेइंग। इंटरेस्टिंगली ये चारों जो सेगमेंट हैं उनका जो सेल रेशियो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, 25% के आसपास है, कहीं 20 है, कहीं 25 है, कहीं 35 है, ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि उसने प्रोडक्ट को सर्विस के साथ जोड़ा, हाइजीन के साथ जोड़ा, कम्युनिकेशन के साथ जोड़ा। आप ऐप पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप स्टोर में जा सकते हैं, आप जहां चाहे जा सकते हैं, आप होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ ए कस्टमर, आप लोग जानते होंगे, आई एम टॉकिंग ऑफ आइडियल पोल्ट्री, आइडियल चिकन, मैंगलोर। पॉइंट इज हिंदुस्तान में हो रहा है, ये वही कंज्यूमर बेस है, वो हिंदुस्तान में, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं। मैंगलोर जैसे छोटे शहर में अगर कस्टमर इज विलिंग टू पे, एक आदमी जो छोटी मुर्गी 1000-2000 बर्ड से जिसने काम शुरू किया आज 350 करोड़ का काम कर रहा है, वो हिंदुस्तान है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। सरकार उसके लिए भी वही थी, देश भी वही था, कानून भी वही थे, कंज्यूमर भी वही था, सब कुछ वही था, काम करने का तरीका अलग था। और ग्रोथ है, और 20% ग्रोथ है सालाना, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। नेक्स्ट प्लीज। So these are some other products. I'll not go into detail. Next, please. So thank you very much. This was the whole approach I wanted to say कि आप भी कर सकते हैं, सोच बदलने की जरूरत है। धन्यवाद।